انگریز سرکار کے ظلم، قید اور محرومی سے تنگ آ کر قلعے سے فرار ہوا۔ صرف ایک ڈاکو نہیں بلکہ عوامی ہیرو، ایشیا کا رابن ہوڈ کیسے بن گیا؟ کبھی ان پہ گھوڑے چرا لیتا تو کبھی انگریز افسر کی بیوی کے زیورات۔ ٹھیکیدار کو سلطانہ کی جانب سے نذرانے کا نوٹس موصول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول کا پول ڈیجیٹل۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا کس طرح بھانتو قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک کم عمر لڑکا جو نسلاً ہندوؤں کی نچلی ذاتوں سے تعلق رکھتا تھا، انگریز سرکار کے ظلم، قید اور محرومی سے تنگ آ کر قلعے سے فرار ہوا اور پھر بابو اور پہلوان جیسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس نے منظم گروہ تشکیل دیا اور ڈاکے ڈالنے لگا۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ صرف ایک ڈاکو نہیں بلکہ عوامی ہیرو، ایشیا کا رابن ہوڈ کیسے بن گیا اور پھر اس کا انجام کیا۔ سلطانہ کی ڈاکہ زنی کوئی معمولی جرم نہ تھی، وہ ہر جگہ چھا گیا۔ میرٹھ، پنجور، رامپور، نجیب آباد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ دلی کے مضافات تک ہر طرف صرف ایک ہی نام گونجتا تھا، سلطانہ سلطانہ سلطانہ۔ اس نے صرف 3 سال کے عرصے میں 500 سے زائد ڈاکے ڈالے۔ ان میں صرف مال و دولت نہیں لوٹا گیا بلکہ انگریز سرکار کی رٹ کو چیلنج کیا، بلکہ انگریزوں کی عزت بھی لوٹ لی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سلطانہ چپ چاپ پولیس چوکی قریب سے گزر جاتا، کبھی ان پہ گھوڑے چرا لیتا تو کبھی انگریز افسر کی بیوی کے زیورات، پھر سب کچھ جنگل میں لے جا کر غریبوں میں بانٹ دیتا۔ یہی نہیں، سلطانہ اکثر ڈاکے کے نوٹس بھی بھیجتا، خط لکھوا کر کسی جاگیردار کو پیغام بھیجتا، میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت آپ کے محل پر واردات کروں گا، تیاری رکھنا۔ ایک روز سلطانہ کو اطلاع ملی کہ ایک بڑے گاؤں کے مکھیا سیٹھ دھرم داس چند کے بیٹے کی شادی ہے۔ مکھیا بڑا ذمہ دار اور ساہوکار بھی تھا۔ وہ ایک چاندنی رات تھی، گاؤں کے کھلے میدان میں باراتی اور ہزاروں مہمان جمع تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے بندوقوں سے لیس دیہاتی محافظ یعنی سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے۔ ہنڈوؤں اور مشلوں کی روشنی میں، ہنڈوؤں جو اس زمانے چھوندے سی نا، مومبتی اندر بال کے تے چاروں طرف لا دیندے سی، لائٹین وانگو بنا دے سی، انہوں نے ہنڈوے کیا جاندہ ہے۔ ہنڈوؤں اور مشلوں کی روشنی میں مجرے کا اہتمام تھا، کھانا پینا اور شراب چل رہی تھی۔ یکدم جنگل کے اندھیرے میں سینکڑوں سائے مجمع کی سمت بڑھنے لگے۔ مشالوں کی روشنی میں سلطانہ کو دیکھ کر مجمع پر سناٹا اور محافظوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سب کو مخاطب کر کے یقین دلایا کہ اگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے تو ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محافظوں سے بندوقیں چھین لی گئی۔ پھر اس نے گاؤں کے مکھیا یعنی دولہے کے باپ کو بلایا اور اس سے کہا کہ چونکہ تحفہ حاصل کرنے کا مناسب موقع ہے، اس لیے ان کے کچھ نہ کچھ، اس لیے مکھیا اپنی نئی خریدی ہوئی انگریزی بندوق اور اس کے گروہ کے لیے 10,000 روپے کا بندوبست کرے۔ بندوق اور روپیہ فوراً سلطانہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 10,000 کی رقم آج کے 10 کروڑ کے برابر ہے۔ مکھیا کے اصرار کے باوجود سلطانہ نے محفل میں شرکت نہ کی اور روانہ ہو گیا۔ البتہ پہلوان اور اس کے چند ساتھی کھانا کھانے اور موج مستی کے لیے کچھ دیر وہاں رکے رہے۔ پہلوان کو دلہن بھا گئی، وہ جاتے ہوئے دلہن کو اغوا کر کے ساتھ لے گیا۔ سلطانہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کا سخت مخالف تھا۔ سلطانہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کا سخت مخالف تھا۔ چنانچہ جب سلطانہ کو اطلاع ملی، اس نے پہلوان کو سخت تنبیہ کی
लड़की और लूटी हुई रकम यानी 10 करोड़ रुपया माजरत के साथ वापस भेज दी गई। इसे मालूम था कि अगर अवाम का दिल जीत लिया जाए, निचली जात का चाहे देहाती लड़का सुल्ताना सिर्फ डाकू नहीं था, वो अवाम की नफ्सियात समझता था। इसे मालूम था कि अवाम का दिल जीत लिया जाए तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन दिनों पर्सी वंडम इलाके के कमिश्नर थे। बेदरपे नाकामियों के बाद उन्होंने यूपी पुलिस के एक मशहूर नौजवान अफसर फ्रेडी यंग को तलब किया। फ्रेडी यंग एक ज़हीन पुलिस ऑफिसर था। इसने 300 जवानों पर मुश्तमिल स्पेशल डकैती फोर्स बनाई, जिसमें यूपी पुलिस के ऊंची जातों के मुसलमान, सिख और हिंदू जवानों को शामिल किया गया, जो इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। देखें अंग्रेज कितना ज़हीन और शातिर था। उसने निचली जात के लोगों का मुकाबला करने के लिए नफ्सियाती तौर पे उचली जात के हिंदुस्तानियों को सामने लेके आया। इसने शिकारी जिम कॉर्बेट को भी साथ देने पर आमादा किया, क्योंकि जिम सिर्फ आदम को शेर ही नहीं मारते थे, बल्कि वो इलाके में मकबूल और इंसानी जहन को पढ़ना भी जानते थे। जिम कॉर्बेट ने फैसला किया कि अगर सुल्ताना को मारा गया तो वो शहीद बन जाएगा। इसे अवामी नाराजगी मोल लिए बगैर जिंदा पकड़ना जरूरी है। रामनगर के इलाके में जंगलात की कटाई जारी थी, जहां हजारों मजदूर काम कर रहे थे। ठेकेदार को सुल्ताना की जानिब से नजराने का नोटिस मौसूल हुआ। महकमा जंगलात के अंग्रेज अफसर को इत्तला मिली तो नोटिस फरीदी को पहुंचाया गया। जिम कॉर्बेट के मशवरे से ठेकेदार ने रक्स और सरूर की बड़ी महफिल का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के जिम्मेदारों, साहूकारों, जंगलात के अंग्रेज अफसर और हिंदुस्तानी अफसरान को भी दावत दी गई। ठेकेदार की जानिब से सुल्ताना को नजराने की वसूली और मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। सुल्ताना ने दावत कबूल कर ली। फ्रेडी और इसकी डकैत फोर्स महफिल के मैदान, जो कि रेलवे ट्रैक के साथ था, से चंद किलोमीटर की दूरी पर माल ट्रेन के डब्बों में छुपे हुए बैठे थे। इनका प्रोग्राम था कि जैसे ही महफिल का आगाज होगा, इंजन इन्हें महफिल के मुकाम पर पहुंचा देगा और वो कार्रवाई करेंगे। सुल्ताना और इसका गिरोह जब महफिल में पहुंचा तो उन्होंने इसरार किया कि नजराने से पहले सुल्ताना और इसका गिरोह जब महफिल में पहुंचा तो डकैतों ने इसरार किया कि नजराना पहले पेश किया जाए। नजराना वसूल करने के बाद उन्होंने इत्मीनान से खाना खाया, शराब की बोतलें उठाई, ठेकेदार को भी साथ लिया और इस हुक्म के साथ रवाना हो गए कि महफिल शुरू की जाए। सुल्ताना की हुक्म अदौली मुमकिन न थी। ढोल बजने लगे। कैप्टन फ्रीडी और शिकारी जिम कॉर्बेट, जो ढोल की आवाज के इंतजार में बैठे हुए थे, अपनी फौज के साथ महफिल के मुकाम पर पहुंचे तो सुल्ताना कामयाब वारदात के बाद कोसों मील दूर जा चुका था। ठेकेदार को अच्छी तरह धुलाई के बाद वापस भेज दिया गया। इस किस्म के दर्जनों जाल बिछाए गए। यूपी से पंजाब और पंजाब से बिहार तक सुल्ताना और इसके गिरोह का पीछा किया गया। ऐसे ही एक जाल के दौरान बरसात की एक रात थी। कैप्टन फ्रीडी और शिकारी जिम कॉर्बेट सुल्ताना के गिरोह के बहुत नजदीक पहुंच गए। बहती नदियों, दलदली इलाके और बरसात से लड़ते हुए वो खुद भी बहुत बुरी हालत में थे। सुल्ताना इस जाल से भी बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इसने एक चिट्ठी या नोटिस फ्रीडी को भेजी, लेकिन इसने एक चिट्ठी या नोटिस कैप्टन फरीदी को भेजा। इस चिट्ठी के मतन से लगता था कि सुल्ताना खुद या इसके साथी कैप्टन और शिकारी जिम कॉर्बेट को नजदीक से देख रहे थे। सुल्ताना ने लिखा था कि इसके गिरोह ने इस वजह से मुकाबला न किया कि आप लोग गोडे गोडे कीचड़ में धंसे हुए थे। बरसात की शिद्दत से आपकी बंदूकें
नाकारा हो चुकी थी। जिम कॉर्बेट लिखता है कि यह चिट्ठी पढ़कर कैप्टन फ्रीडी बहुत तिलमिलाया, जबकि वो खुद बहुत महसूस हुआ। अंग्रेज की मुनज़्ज़म रियासती ताकत का मुकाबला सुल्ताना और उसके गिरोह की बस की बात न था। फ्रीडी की एंटी डकैत फोर्स के साथ साथ यूपी की सल्वेशन आर्मी, पंजाब और हर रियासत की पुलिस, सीटीडी, स्पेशल ब्रांच उनका पीछा कर रही थी। सुल्ताना के गिरोह के सैकड़ों अफराद मरते मरते घटते घटते दर्जन भर बचे थे, लेकिन वो खुद हाथ नहीं आ रहा था। ऐसे में शिकारी जिम कॉर्बेट ने इसे मुलाकात पर आमादा कर लिया। तय हुआ कि वो दोनों निहत्थे रोहिलखंड के जंगलात में मुलाकात करेंगे। इस 2 घंटे तवील मुलाकात में शिकारी ने सुल्ताना की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कॉर्बेट ने उसे समझाया कि तुम अवाम के लिए लड़ते हो या अपने लिए। अगर ये अवाम के लिए है तो अब इनके लिए कुछ करके दिखाओ, जाओ कानून का सामना करो और तारीख बदल दो। ये बात सुल्ताना के दिल को लगी। वो डाकू से रहनुमा बनने के ख्वाब देखने लगा। इसने कहा, अगर तुम मुझे वादा दो कि मैं मारा न जाऊंगा तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इन मुलाकातों में कैप्टन फ्रीडी भी शामिल हुआ। अंग्रेज हुकूमत के इस वादे पर कि सुल्ताना को सरेआम कत्ल या फांसी न दी जाएगी बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे, सुल्ताना अवाम के महबूब डाकू ने सरेंडर कर दिया। अंग्रेज सरकार ने कोई वादा वफा न किया। शिकारी जिम कॉर्बेट ने इस रवैये पर अफसोस का इजहार किया। वो आखिर तक इसके हक में नरम गोशा रखते थे, मगर सल्तनत की पॉलिसी के आगे बेबस थे। सुल्ताना को जगह जगह हथकड़ियां पहनाकर फिराया गया। शायद अंग्रेज नुमाइश के जरिए बगावत के इस बुत को पाश पाश कर देना चाहते थे, जो सुल्ताना ने हिंदुस्तानी अवाम, खुसूसन निचले पिसे हुए तबके के जहनों में तामीर किया था। अंग्रेज इसके मुखालिफ थे। हिंदुस्तानी तबका अशराफिया के दिल से किसी हद तक सुल्ताना का खौफ निकल चुका था। ऊंची जात के हिंदू और मुसलमान इससे नफरत करते थे। कोई मदद के लिए आगे ना आया। फिर भी दहशत और मोहब्बत अभी बाकी थी। सुल्ताना के खिलाफ कोई नाकाबिले तरदीद गवाही पेश न हो सकी, लेकिन वादे के बरखिलाफ कैप्टन फ्रीडी ने मजबूत केस बनाया था। दिल्ली की अदालत में इसे सजाए मौत सुनाई गई। वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए 1924 में इसे सरेआम फांसी दी गई, लेकिन बगावत के बुत को न तोड़ा जा सका। फांसी से कबल सुल्ताना ने एक मुख्तसर तकरीर की। इसने कहा, मेरे कबीले पर जुल्म न करना। हमें इस धरती पर बोझ समझा गया। हमने जुर्म नहीं चुना, हमें कानून ने मजबूर किया। अगर हमें मौका मिला होता तो शायद हम सिपाही होते, डाकू नहीं। इसने कैप्टन फ्रीडी से दरख्वास्त की कि इसके कुत्ते, बीवी और बेटे का ख्याल रखा जाए। कैप्टन फ्रीडी ने बीवी और बेटे का ख्याल रखा या नहीं कहा नहीं जा सकता, अलबत्ता इसने सुल्ताना के कुत्ते का जरूर ख्याल रखा। कुत्ते के जरिए इसने चालबाजी से बाबू और पहलवान समेत इसके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, अगर आपको ये सनसनी अंगेज और जज्बाती दास्तान पसंद आई हो तो प्रोग्राम को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम।